स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक सॉल्व करवा रही हूँ। और अभी तक मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवाया है और अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। और मैट्रिक्स टॉपिक जो है वो 12th स्टैंडर्ड में बिल्कुल न्यू है। ये जो टॉपिक है वो 12th स्टैंडर्ड में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी और आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। सो लेट्स मूव टू माय क्लास। Okay students, so first I will explain you what is matrix. Matrix means a set of mn numbers in the form of a rectangular array of m rows and n columns is called m into n matrix, right? Means what? This is a arrangement in which we are writing m into n numbers in the form of a rectangular array where m is representing the number of rows and n is representing the number of columns. Means any information. Means suppose I said that Radha has 15 books and 20 pen. ठीक है, तो if I want to write this information in the form of this matrix, then how I will write? First thing, that matrix always written in this rectangular array, right? In this box, ठीक है, rectangular box. And how I will write this information? 15, 20, right? So this information I have written in the form of a rectangular array where it has one row and two columns. So I will write here 1 into 2. 1 is what? Number of rows. First always we will write number of rows and second always write number of columns. So 1 into 2 means what? This rectangular arrangement is containing one row and two columns, right? So the order of, simultaneously I will explain you this also, that what is the order of this matrix, and 1 into 2, right? So this is the rectangular arrangement in which we are writing this information. So you can say that matrix is what? A rectangular arrangement of m rows and n columns is known as what? M into n matrix. Clear? Suppose I took this matrix A equal A11, A12, A13, A21, A22, A23, right? So in this is the first element. A11 means 11 means what? First row, first column. 12 means what? First row, second column. First row, third column. Second row, first column. Second row, second column. Second row and third column. So this is how we will write. So this matrix is containing how many numbers are there? 6 numbers are there. What is the order of this matrix? How many rows are there? 2. So I will write 2. And how many columns are there? 3. So I will write 2 into 3. So order of this matrix is what? 2 into 3. Clear? So I hope this will be clear to you all. Now this is a matrix 2, 0, 3, 3, 1, 5, 1, 2, 4. So what is the first element? This is what? A11. A11 element is what? 2. A12 element is what? 0. A13 element is what? 3. A21 element is what? 3. A22 element is 1. A23 element is what? 5. A31, then A32 is 2. A33 is 4. Now what is the order of this matrix? There are 3 rows and 3 columns. So order of this matrix, order of matrix A is what? 3 into 3. So this is how we will write the order of a matrix. First always write row and then columns. Clear? Okay students, so now I will explain you types of matrix. So there are these types of matrix. First is column matrix, row matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, identity matrix and zero matrix. Now first is what? Square matrix. Sorry, column matrix. What is column matrix? Right, so column matrix means what? If there is only one column in a matrix, means if a matrix is containing only one column, number of rows may be anything, but column should be 1, means 1, 2, 3, 4, suppose this. So this is a column matrix because there is only one column. Clear? If row matrix means what? If there is only one row. If I write this x, y, z, suppose. So this is what? A row matrix because there is only one row. Number of what is the order of this matrix? If suppose
find out the order of this matrix, then what will be the order of this matrix? How many rows are there? 1 2 3 4, 4 rows are there and 1 column, right? Here 3 row, sorry, 1 row and 3 columns, so order is what? 1 into 3. Clear? So row matrix and column matrix is clear. Now square matrix. If the number of rows and number of columns are equal in a matrix, then that is known as a square matrix. मतलब वो एक स्क्वायर बनना चाहिए, राइट? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे सपोज 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो 2, सो 2 into 2 is what? A square matrix. The order of this matrix 2 into 2. सेम वे 1 into 1 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, 3 into 3 का, 4 into 4 का. मीन्स जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स. अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, राइट? अब देखिए ये जो जितने भी हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. देखो डायगोनल मैट्रिक्स जब आपको फाइंड करना है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा, राइट? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कोई मैट्रिक्स, आप क्या बोल सकते हो अगर आपको स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज कंटेनिंग एलिमेंट्स ओनली एट द डायगोनल. मतलब डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वही सिर्फ नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो. जैसे सपोज अगर मुझे 3 into 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 0 0 0 3 0 0 0 4. सो दिस इज व्हाट? ए स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट. तो डायगोनल मैट्रिक्स पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा, राइट? तो डायगोनल, अब उसमें आपको क्या देखना है कि उसके डायगोनल पे एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? उसके जीरो होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. क्लियर? इफ द एलिमेंट्स at the diagonal is non-zero and rest other elements are zero, then that matrix is known as what? Diagonal matrix. Clear? Now स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स मीन्स व्हाट? अब एक स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए. मतलब उसके डायगोनल पे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. लेकिन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? जो स्केलर मैट्रिक्स है उसका मीनिंग क्या होता है कि डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. अगर डायगोनल पे एलिमेंट्स सभी सेम हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. जैसे अगर मैं आप उसको एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, राइट? तो सबसे पहले तो देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल पे ईच एलिमेंट अगर सेम हो जाता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ए मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म बी आई जे एन इंटू एन होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा. बी आई जे, ठीक है, इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ दो आपके पास में इसके एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? बी आई जे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? उसके जीरो होने चाहिए जब आई इज नॉट इक्वल टू जे. मैं आपको भी ये डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करती हूँ. एंड बी आई जे इक्वल के क्या है? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. व्हेन आई इक्वल जे, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? देखो बी आई जे मतलब क्या हो गया? ये अगर इस एलिमेंट का मैं पोजीशन, आप यहाँ पे बी की जगह ए लिख लो अगर आपको ए ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है तो. जैसे ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है? ए 1 1, राइट? तो ये क्या है? 2 है. यहाँ पे के की वैल्यू क्या है? 2 है, राइट? तो ये 2 है. बी ए 1 2, 1 2 का मतलब दोनों 1 और 2 दोनों नॉट इक्वल हो गए ना. आई और जे की वैल्यू नॉट इक्वल है तो जीरो होगा. जहाँ पे आई और जे की वैल्यू नॉट इक्वल है तो वो क्या होंगे? एलिमेंट जीरो होंगे. और जब इनकी वैल्यू इक्वल है तो वो क्या होना चाहिए? के होना चाहिए. ऐसे ही आप डायगोनल मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर सकते हो कि जब आई जे इक्वल जीरो, जब आई नॉट इक्वल टू जे है, और आई जे इक्वल नॉट जीरो. नॉट इक्वल मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को आप नॉट इक्वल टू जीरो लिख दो बस, क्योंकि उसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट? तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा. स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट कोई भी सेम होना चाहिए, मतलब डायगोनल पे एलिमेंट्स. तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं. क्लियर? सेकेंड है आपका आइडेंटिटी. नेक्स्ट आपका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो, जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे? अगर उसके सभी एलिमेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स अगर क्या हो जाए? 1 1 हो जाए, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. इसको हम आई से डिनोट करते हैं. और अगर मैं यहाँ पे आई 3 लिखती हूँ तो इसका मतलब मुझे 3 into 3 का मैट्रिक्स लिखना है. आई 2 का मतलब हो गया 2 into 2 का. आई 1 का मतलब हो गया 1 into 1 का. ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो. तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. क्लियर? इसको हम आई से डिनोट करते हैं. उसके बाद में जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर सभी एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं.
क्लियर? तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अगर एक ही कॉलम उसमें होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अगर एक ही रो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। Diagonal matrix is square matrix is said to be diagonal matrix if aij equal 0 for I is not equal to j, or aij equal not equal 0 when I is equal to j. एंड स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स. ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल के हो जाए. ठीक है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ऑल एलिमेंट्स आर वन. ठीक है. और इसको हम आई से डिनोट करते हैं. जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज व्हाट? जीरो मैट्रिक्स. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स ऑफ 2 इंटू 2. कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2. 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है इस डेफिनेशन से. ठीक है. तो अब देखो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स अगर मैं लिखूँ, सपोज वो मैट्रिक्स क्या है? ए है. तो A11, A12, A21 और A22. देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये इक्वल होगा. और A11 ये सारे एलिमेंट्स होंगे. अब मुझे इस डेफिनेशन से A11 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आई और जे दोनों की वैल्यू क्या है? 1 1. ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 + 1 अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर. तो 1 + 1 2. 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4. 4 अपॉन 2 तो ये आ गया आपके पास में 2. ऐसे आप A12 की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो 1 + 2 अपॉन 2. 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो जाएगा. A21 जब आप फाइंड करोगे तो 2 + 1. आई की वैल्यू क्या है? 2 और जे की वैल्यू 1. तो डिवाइडेड बाई 2. तो अगेन ये 9 अपॉन 2 ये आपके पास आएगा. A22 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? 2 + 2 4. 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. 16 अपॉन 2 मतलब क्या हो गया? 8. तो ये आपके पास में एलिमेंट्स आ गए. अब आप इन एलिमेंट्स को यूज़ करके और ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो आप जब इसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपके पास में मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? A इक्वल 2 1 2. 1 2 की वैल्यू क्या है? 9 अपॉन 2. 9 अपॉन 2 ये भी आपके पास में क्या आ जाएगा? 9 अपॉन 2 और यहाँ पे 8. तो आपके पास में मैट्रिक्स ये आ गई. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है. तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है और ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको मैट्रिक्स और उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया है. और हम मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, so you can put it your queries in your in comment box. Then I will try to take your questions. Thank you very much for watching me, and till then, bye bye.